जागो मां गाने पर सिंगर पर भड़का टीएमसी नेता। सिंगर को पीटने के लिए स्टेज पर दौड़ा टीएमसी नेता। If somebody can access that video and if the video can get out in public, then everybody will see that Mehboob Mollik had charged towards the stage with the intention of hitting me. In plain words, he wanted to beat me up. ममता के तुष्टीकरण का बंगाल में हुआ पर्दाफाश। अब हिंदुओं का उपवास उड़ाना, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का समय लग चुका है। ये नहीं चलेगा। कान खोल के टीएमसी के नेता सुन ले कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान बंगाल से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अब बर्दाश्त नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में फिर एक बार शर्मसार करने वाली और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। दरअसल बंगाल की मशहूर प्लेबैक सिंगर लगनजिता चक्रवर्ती का एक स्कूल प्रोग्राम था और इसी दौरान उन्होंने कई गीत परफॉर्म किए और यहीं पर जब उन्होंने जागो मां गाना गाया तो इस फिल्म के गाने को लेकर, यानी कि इस गाने को लेकर जिसके बोल थे जागो मां, इस गाने को सुनते ही टीएमसी का नेता सिंगर पर इस कदर भड़क पड़ा कि वो स्कूल में हो रहे प्रोग्राम के स्टेज पर चढ़कर सिंगर के लिए मारने के लिए वहां पर पहुंच गया। और आपके लिए बता दें कि जिस नेता को टीएमसी का बताया जा रहा है और जिस टीएमसी के नेता ने सिंगर के ऊपर जिस तरीके से हमला करने की कोशिश की है उसका नाम महबूब मलिक बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये टीएमसी का नेता महबूब मलिक स्टेज पर चढ़ आया और इसने कहा कि बहुत हो गया, जागो मां, अब कुछ सेकुलर गाना गा और इसी के साथ साथ प्लेबैक सिंगर लगनजिता चक्रवर्ती को गालियां भी देने लगा और मारने की कोशिश इस व्यक्ति ने की एक प्लेबैक सिंगर को। इसी के साथ साथ चिल्लाकर कहा कि अब बहुत हुआ, जागो मां, अब कुछ सेकुलर गाना गाओ। इसी के साथ सुनिए क्या कुछ और हुआ स्टेज पर और क्या कह रही है सिंगर लगनजिता। So I had started my show at around 7 in the evening and my show was going absolutely okay, smooth, like a show is supposed to go. At around 7:45 I was done singing 7 songs and I was going on to my 8th number of the list. And before going on to my 8th number, I was nearly interacting with my audience like we generally do, in between 2 songs. So this 7th song which I was done singing is a song called Jago Ma, and it is a song from this movie Devi Chaudhurani, which has released this Pujo itself. While I was done singing this song and while I was talking to the audience, we suddenly see a gentleman charging towards the stage, not walking but running and charging towards the stage. And within a split second, he was up on the stage with us. And if my face is here, his face was here. And the school that I was performing in last evening, that school, from their end, they were video recording my entire concert through and through, which is a very common thing these days. They often record the concert through and through so that they can later put it up as a YouTube link or whatever, because it's a full-fledged concert, right? So I don't have access to that video because it belongs to the school. But if somebody can access that video and if the video can get out in public, then everybody will see that Mehboob Mollik had charged towards the stage with the intention of hitting me. In plain words, he wanted to beat me up. And even if the video is not accessible, there were teachers, students and guardian as audience last evening, so they all saw it. And when he got up on stage and when he was here and about to hit me, 2-3 people, very unfortunate for him but very fortunate for me, 2-3 people managed to pull him away from me. And when he realized that, well, he really could not manage to beat me up even after all this, and while he was being pulled away from me, he shouted and said, "Onek jago ma hoyeche, ebar ekটু secular ga," which means enough of your jago ma, now sing something secular. I also have a huge
problem with the way he has addressed me, because Bangla is a beautiful language with sweet gestures like apni, tumi, आप, तुम, ये सब तो है बांग्ला में. तो उन्होंने डायरेक्टली मुझे तू करके पुकारा, which I am not okay with, because that's not part of our culture. We don't do that to somebody whom we don't know or a guest. Tu is for very near and dear ones, or use an abuse. So in this case, I don't know if he felt I was a near and dear one or he was abusive. He has to judge. I can't say that, but I did not like the fact that he has called me tu and not aap or tum. So he said, enough of your jago ma, ab kuch secular ga. But then after that, he was pulled down from the stage by the audience and the other people who were present there. Of course, I couldn't have completed my show after this. I told the audience that this is what has happened in front of your eyes. Of course, I can't finish my show. So I'm getting down. So I got down from the stage. Then I went to the Bhagwanpur police station. I told everything that had happened. The police asked me to file a GD, a general diary, and I've done it. देखिए, सिंगर का बयान आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने बताया है कि वो मेरे मुंह के इतने करीब आया कि उसके मारने के इरादे साफ दिख रहे थे. वो तो बीच में लोग आ गए, तब जाकर मैं बच पाई हूं, प्रोग्राम रुक गया. लेकिन इसी के साथ साथ सिंगर ने ये बताया है कि मैंने पुलिस स्टेशन जाकर इस पूरे मामले में अब केस दर्ज कर दिया है. देखिए, पश्चिम बंगाल में किस तरीके से अब लगातार महिलाओं के खिलाफ, तो हम पहले से ही सुन रहे थे कि किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हिंसा होती आ रही है. हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है. वहीं पश्चिम बंगाल में अब हिंदू गाना भी इस कदर अपराध हो गया है कि एक इतनी ज्यादा मशहूर सिंगर, जो बंगाल में काफी ज्यादा चर्चित सिंगर हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमले तक कर रहे हैं अब ये टीएमसी के नेता. इसी पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरव वल्लभ ने कहा है कि हिंदू विरोधी मानसिकता बंगाल और देश नहीं सहेगा. सुनिए गौरव वल्लभ का ये बयान. क्योंकि वो बंगाली गायिका माँ का नाम ले रही थी, देवी माँ का नाम ले रही थी, तो टीएमसी के नेताओं को उससे तकलीफ हो गई. क्योंकि उनके जो दूसरा वोट बैंक है, जो धर्म के आधार पे वोट देता है, वो नाराज ना हो जाए, इसलिए उस गायिका को बोला कि अब ये माँ का, देवी माँ के गीत मत गाओ, अब कोई सेकुलर गीत गाओ. अरे भाई, पूरे देश में देवी माँ के गीत गाने पर कहाँ पर पाबंदी है? कहाँ संविधान में लिखा हुआ है? माता देवी शक्ति का प्रतीक है, उसके गीत, उसके भजन गाने पे रोका जा रहा है और वहां पे कह रहे हैं सेकुलर गीत गाओ. ये जो तथाकथित सेकुलर मानसिकता है, ये सेकुलर मानसिकता नहीं, ये हिंदू विरोधी मानसिकता है. अगर हिंदू माँ के अलावा किसी दूसरे धर्म के देवी देवताओं पर गीत गाते तो वो सेकुलर है, पर हिंदू देवी देवताओं पर गीत सेकुलर नहीं है. ये कौन सी परिभाषा है? अब हिंदुओं का उपहास उड़ाना, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का समय लग चुका है. ये नहीं चलेगा. कान खोल के टीएमसी के नेता सुन ले कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान बंगाल से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अब बर्दाश्त नहीं होगा. बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा हमलावर है और इसी के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आया है. सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं शहजाद पूनावाला. देखिए, आज तृणमूल कांग्रेस द्वारा शासित पश्चिम बंगाल में माँ माटी मानुष नहीं, जिहादी, आतंकवादी, अपराधी, बलात्कारी सुरक्षित है. और यहाँ पर बाबरी जिंदाबाद का नारा लगा सकते हैं टीएमसी के राज्य में, पर आप जागो माँ नहीं कह सकते, माँ दुर्गा की स्तुति नहीं कर सकते. जय श्री राम का भी विरोध होगा इनके तरफ से. ये प्रभु श्री राम को मुस्लिम बोलेंगे, ये मदन मित्रा ने बोला. ये शिवलिंग का मजाक उड़ाएंगे, सायोनी घोष ने उड़ाया. ये माँ दुर्गा, माँ काली का अपमान करेंगे, महुआ मोइत्रा ने किया. और जिस प्रकार से एक टीएमसी का शासनकाल अब इस्लामिक स्टेट के शासनकाल की तरह है, मतलब कि हिंदू आस्था पर करो चोट, मिलेगा वोट बैंक का वोट, इसीलिए ये करते हैं इस प्रकार का पूरा मामला, जहां पर पुलिस भी इस टीएमसी कार्यकर्ता के बचाव में आ गई जिसने जागोमा गाने वाली हमारी बहन, हमारी एक आर्टिस्ट को इतना फिजिकली असॉल्ट किया. अब पश्चिम बंगाल की जनता को देखना है कि उनको बाबरी जिंदाबाद चाहिए या उनको जागोमा चाहिए.
देखिए, पश्चिम बंगाल में ये कोई इकलौती घटना नहीं है ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार के राज में हिंदू भक्ति गीतों पर पहले भी हमले हुए हैं और अब ये हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। टीएमसी नेता होने का आरोप लगने के बाद भी अपराधी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन सवाल ये है कि बंगाल में हिंदू संस्कृति और भक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी पर ये तुष्टीकरण का बोझ आखिरकार कब तक चलेगा। बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि किस तरीके से एक्शन नहीं लिया जा रहा है आरोपी के ऊपर, और अब सवाल ये भी उठने लगे हैं क्या बंगाल अब बांग्लादेश जैसा बनता जा रहा है जहां हिंदू गीत गाना भी खतरे का काम हो गया है। ममता सरकार इस पूरे मामले पर क्यों चुप है? वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू भावनाओं का अपमान करना कब तक सही रहेगा? इस तरीके के लगातार सवाल सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं। और जब मीडिया कर्मियों ने टीएमसी के नेता कुणाल घोष से इस पूरे मामले पर बात की है तो वो तो एक तरफ आरोपी को जिम्मेदार बता रहे हैं और इसी के साथ साथ उन्होंने सिंगर को लेकर कहा है कि यहाँ पर लगनजिता चक्रवर्ती जो प्लेबैक सिंगर हैं वो जागो मां गाना एक बार नहीं बल्कि कई बार गा सकती हैं। पहले आप कुणाल घोष का ये बयान भी सुनिए। देखिए, लगनजिता चक्रवर्ती एमिनेंट सिंगर, उसका साथ जो हुआ है वो अनफॉर्चुनेट है। जिस आदमी ने ऐसा किया वो गलत किया, पुलिस स्टेप ले रहा है। और लगनजिता जी जो गाना गाए थे उसमें कोई दोष नहीं था। लगनजिता चक्रवर्ती एक बार क्यों बार बार वो गाना गा सकती है। तो देखिए, एक तरफ टीएमसी के नेता इस कदर बयान दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के कुछ और नेता किस तरीके से हिंदू गाने वाली सिंगर के ऊपर किस तरीके से हमला करते हैं। इस पूरे मामले पर अब लगातार सोशल मीडिया पर एक बहस का मुद्दा छिड़ गया है जहां कुछ लोग टीएमसी का फेवर कर रहे हैं कि उनके नेता स्टैंड ले रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग पश्चिम बंगाल की राजनीति पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार अपने ही देश में कब तक हिंदुओं को घुट-घुट कर रहना होगा। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी जो भी राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।